Okay, so everything that could have been discussed sideways via the calculator, okay, that we have discussed. Now we will just try to not use the calculator now and focus on other discussions. So you may give the heading return measures. Return measures. Return measures. Point number 1. Okay, listen. Whenever we invest our money anywhere, whether stock, bond, project, there is a rate of return that we require. Otherwise, why should we invest? So I'm talking about that rate of return required. Required rate of return, very, very important. Okay? How do we calculate that required rate of return? So, उसमें required rate of return में there are 3 components. Discuss हो रहा है, do not copy. First component is risk-free real rate. Risk-free real rate. ना यहाँ पे मैंने 2 word use किया है. One is risk-free, the other is what? Real. Real मतलब होता है without inflation. Without inflation. और risk-free का मतलब होता है without risk. So suppose you are buying a government security. What security? Government security. Can the government default? No. There is no risk. I am buying a treasury security. There is no chance of default, so risk free. ठीक है ना? Plus, at the same time, the government security is promising to protect me against whatever inflation takes place. जो भी inflation हुआ, बोला चिंता मत कर, उतना तेरे को extra मिल जाएगा. तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? आप 1 साल के लिए मेरे को पैसा दो, 1000 रुपया, ठीक है, मैं आपको 4% दूंगा, सपोज 4%, 1040. तो 1040 डूब सकता है क्या? नहीं, पक्का आएगा. और दूसरा, अगर इन्फ्लेशन कुछ हो गया ना 2-3%, मैं आपको 2-3% एक्स्ट्रा दूंगा. तो तुम बाई करते समय इन्फ्लेशन का चिंता करेगा क्या? नहीं. एट द सेम टाइम बाई करते समय रिस्क का चिंता करेगा क्या? नहीं. पर फिर भी तुमको कुछ रिटर्न चाहिए, बिकॉज यू आर सैक्रिफाइसिंग योर कंजम्पशन. Sacrificing consumption. Given a choice, one would like to consume today, not later. We would like to consume today, but why do we save for the future? We save only if we get what? Something extra. So that extra that is required for the deferral of present consumption is called the pure interest rate in the economy. It is called the risk-free real rate. Risk-free real rate. ठीक है ना? Now that is more or less constant throughout the universe. या US हो या UK हो या India हो, all are human beings. They are all wanting to consume right now. And if they are saving, they want some compensation, because why should they sacrifice present consumption? That risk-free real rate is suppose 4%. 4. Story changed. We are buying a treasury security, but it has no inflation protection. We are buying a treasury security, government security, but there is no inflation protection. The government is saying, आप पैसा दोगे, आपको इतना रिटर्न मिलेगा, और इन्फ्लेशन जो भी हुआ वो आप सल्टोगे. तो भाई सोच के बोलना, पहले बोल दिया, तुम सोच लेना इन्फ्लेशन क्या होने वाला है, और सोच के बोलना. तो उस केस पे तुम्हारे मन में 2 चीज चलेगा. नंबर 1, तुम कंजम्पशन सैक्रिफाइस कर रहे हैं. नंबर 2, अगर 1 साल में चीज़ों का दाम बढ़ गया, तो व्हेन यू गो टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, तब ज़्यादा दाम लगेगा, तो परचेसिंग पावर ऑफ मनी विल फॉल बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. तो यू वुड वॉन्ट 4% और मोर. That more is inflation. How much? Inflation. Suppose I'm calling it inflation premium. Inflation premium is 3%. How much? 3%. तो सर अपने को 3% एक्स्ट्रा चाहिए. As soon as we include 3% within 4%, it's called nominal rate. What rate? Nominal. तो फाइनेंस में nominal का मतलब with inflation, real का मतलब without inflation. ठीक है? तो intuitively 4 and 3 makes a 7. 4 and 3 makes what? 7%. But there is a difference between intuition and hardcore maths. तो मतलब एक common theme है जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ और जो CFA बहुत काम आता है, वो ये, एक चीज़ होता है accurate और एक चीज़ होता है approx but simple. Accurate और दूसरा होता है approx but simple. What should the world respect? Accuracy hardcore या approximation but simple?
द वर्ड रिस्पेक्ट्स बोथ। अगर जो एक्यूरेसी और अप्रॉक्सीमेशन है उस पर जरा सा गैप है, क्या गैप है? जरा सा। द CFA इंस्टीट्यूट रिस्पेक्ट्स इंट्यूशन एंड सिंप्लिसिटी, बट अगर द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज्ड इज टू ह्यूज, वी ऑल्सो गो फॉर व्हाट? एक्यूरेसी। मतलब अगर कोई चीज़ सिंपल है और जरा सा इनएक्यूरेट चलता है, बट अगर बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट है तो फिर अपने किस पे जाते हैं? एक्यूरेसी। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ 4 और 3 का 2 मैथ्स है, मैथ्स देखना। वन इज 4 + 3 7, द अदर इज 4 + 3 + 3% of 4, which is 7.12. The correct answer is 7.12. The approx answer is 7. Let me explain. 100 रुपया आज कहीं लगा रहे हैं, 1 साल बाद 104 चाहिए, 104, बट सर 3% इन्फ्लेशन होने वाला है, तो 104 पे 3% चाहिए। किस पे? 104 पे, 100 पे नहीं। अगर 100 पे 3% होता तो ठीक है, 100 पे 4% 4, 100 पे 3% 3, 4 और 3 7, बट वी वांट 104 पे 3%, तो वो 3% जो 4 पे लग रहा है वो 7 में मिस आउट हो जा रहा है ना, 0.12 एक्स्ट्रा, 7.12, 7.12, यू अंडरस्टैंडिंग? तो अकॉर्डिंगली ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा, द मैथ्स इज 1.04 into 1.03, the whole thing -1. इसका मतलब 1 रुपी के बदले हाउ मच डू यू वांट? 1.04। 1.04 पे 3% मोर, यानी इंटू 1.03, तो जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर है 1.04 इंटू 1.03, इट इज़ 1.0712, यानी सर अपना 1 रुपया 1.0712 बन जाना चाहिए, और उस पे से 1 हटाए तो क्या बचा? 0.0712, विच इज 7.12%। बोलने वाइज आई कॉल इट फैक्टर इंटू फैक्टर -1। क्या? फैक्टर इंटू फैक्टर -1। 4% इज अ रेट, 1.04 इज अ फैक्टर। फैक्टर माने 1 + r, फैक्टर माने 1 + r, और रेट माने r, तो फैक्टर इंटू फैक्टर -1, दिस इज एक्यूरेट, 7.12, ओके, एंड 7 इज व्हाट? अप्रॉक्स। तो सर एग्जाम में कौन सा यूज करना है, 7.12 या 7? तो उसका जवाब ये है, वो ऑथर पे डिपेंडेंट है। अलग अलग ऑथर ने अलग अलग फोकस किया है, QM में अलग फोकस है, फिक्स्ड इनकम में अलग फोकस है, वहाँ बताते रहेंगे। जनरली मल्टीपल चॉइस अगर आया, इफ यू सिंपली ऐड इन, सॉरी, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न is equal to, nominal rate of return is equal to, option number A, exactly equal to real rate plus inflation. Option number B, approximately equal to real rate plus inflation. तो obviously कौन सा correct है? Approximately equal to, ठीक है? और अगर generally nominal rate is equal to real rate plus inflation और बाकी कुछ और ही बोला है, तो आंसर real rate plus inflation चलेगा। तो it depends upon ना जो बंदा बोल रहा है वो किस लेवल पे बोल रहा है, वो खुद ही बोल रहा है एग्जैक्टली इक्वल टू रियल प्लस इन्फ्लेशन, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू रियल प्लस इन्फ्लेशन, तो आपको क्लिक होना चाहिए कि यार नहीं, अप्रॉक्सीमेटली रियल प्लस इन्फ्लेशन होता है, एक्चुअली क्या होता है? ज़्यादा। यू अंडरस्टैंडिंग? तो मल्टीपल चॉइस से पकड़ लेते हैं वो एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं। वैसे ही सुनना प्लीज, नॉमिनल रेट इज 9%, इन्फ्लेशन इज 4%, नया सेट ऑफ फिगर्स है। नॉमिनल रेट 9, इन्फ्लेशन 4, और रियल रेट निकालना है। क्या निकालना है? रियल रेट। पहला फीलिंग है 5, 9 में से 4 हटाना है, 5, एंड द फीलिंग इज एक्यूरेट और अप्रॉक्स। अप्रॉक्स जैसे मिलाते समय ऐड करना अलाउड नहीं है, वैसे हटाते समय माइनस करना अलाउड नहीं है। जैसे मिलाते समय मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे हटाते समय क्या करेंगे? डिवाइड। जैसे मिलाते समय मल्टीप्लाई रेट करते हैं कि फैक्टर? फैक्टर। तो हटाते समय डिवाइड जो करना है, रेट या फैक्टर? फैक्टर। 9 का फैक्टर 1.09, 4 का फैक्टर 1.04, और ये जो आया ये तो 1 + r आया, -1 तो करना ही पड़ेगा। आई होप -1 इज नॉट डिस्टर्बिंग फॉर एनीवन। व्हाट आर वी गेटिंग इज 1 + r, वी हैव टू रिमूव द 1 टू गेट व्हाट? r। तो 1.09 डिवाइड बाय 1.04, द होल थिंग -1, इट वुड बी, इट्स कमिंग टू व्हाट कैल्सी? So he's saying it's coming to 0.048, ठीक है, 48, यानी 4.8% ना, 4.8%। एंड नाउ यू कैन थिंक बैक ट्रैक, 4.8% रियल रेट और 3%
4.8% रियल रेट और 4% इन्फ्लेशन है, 4.8% रियल रेट और 4% इन्फ्लेशन है, दोनों मिला के 8.8 थोड़ी होता है, ज़्यादा होता है ना, बिकॉज 4.8 प्लस 4 इज 8.8, बट व्हाट अबाउट 4% ऑफ 4.8, दैट मेक्स इट 9। समझ गए? तो इसका मतलब दो चीज समझाया, नंबर वन रियल मतलब विदाउट इन्फ्लेशन, नॉमिनल मतलब विथ इन्फ्लेशन। नंबर टू मैथ, मैथ क्या है, वन इज प्लस एंड माइनस, वन इज प्लस एंड माइनस, द अदर इज फैक्टर इनटू फैक्टर माइनस वन मिलाते समय, फैक्टर डिवाइड बाय फैक्टर माइनस वन हटाते समय। इज इट ओके? ठीक है। लास्ट थिंग, वी आर buying a corporate bond. Which bond? Corporate bond, not treasury, corporate. Is there a risk involved? Yes, the corporate can default. Are you risk averse or risk loving? Risk averse. So you hate risk. Why should you buy a corporate bond? I will not buy a corporate bond unless the corporate gives me a higher return. I am willing to take risk only to get a higher return. That extra return I require is called risk premium. It's called risk premium. Risk premium. Risk premium is the extra return required for taking risk, say 5%. So on the board you have three components, 4, 3 and 5. ठीक है? 4, 3 and 5. Which is inevitable? 4. 4 तो आएगा ही. Any investment involves a sacrifice of consumption and therefore 4 is definitely required. 3 maybe. अगर अपने inflation suffer करने वाले हैं, we require 3 more. अगर suffer नहीं करने वाले हैं, we don't require 3. अगर अपने रिस्क सहने वाले हैं तो रिक्वायर 5 मोर, अगर रिस्क नहीं है वी डोंट रिक्वायर 5 मोर। इज इट ओके? तो 3 and 5 आर कंटिंजेंट ऑन द सिचुएशन वेयर वी आर इन्वेस्टिंग, बट 4 इज इनएविटेबल। सही है? एक बार बताना बोर्ड पे जानबूझ के आर्ग्यूमेंट के लिए सम आया, व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय यू इफ यू आर इन्वेस्टिंग, इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर मनी एट ऑल, इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर मनी एट ऑल, ठीक है, बट यू आर टेकिंग रिस्क, बट यू आर टेकिंग रिस्क, इन्फ्लेशन को भूल जाना एक बार, बट यू आर टेकिंग रिस्क, पैसा नहीं लगा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, वॉट रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड ऑन द बोर्ड? 5%। तुम 7 अप 7 डाउन खेल रहे, पैसा लगता है क्या उस समय? 7 अप 7 डाउन खेल रहे हैं तो उससे है कि नहीं? वो तो हाथ पे रहता है, चला थोड़ी गया, ठीक है, हारे तो देना पड़ेगा, जीते तो रिस्क ले रहे हैं। When you are taking risk, you require some return, that's called risk premium. When you are investing money, you require risk-free real rate. You are investing and you are going to suffer inflation, you require risk-free nominal rate. You are investing and you are going to suffer risk also, you want risk-adjusted rate. Risk-adjusted rate. You have to be very clear that मेरे को क्या return चाहिए, depending upon मैं क्या कहाँ पैसा लगा रहा हूँ। ठीक है? तो ये एकदम हार्ड कोर पे लाई करता है, whether you study low level finance, high level finance, एकदम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ये, कि जब पैसा लगा रहे हैं तो यार कितना रिटर्न मांगे, हाउ मच रिटर्न शुड बी रिक्वायर, शुड बी रिक्वायर इन्फ्लेशन प्रीमियम? इसका जवाब, आर यू सफरिंग इन्फ्लेशन? यस, यस रिक्वायर रिस्क इन्फ्लेशन प्रीमियम। आर यू सफरिंग रिस्क? यस रिक्वायर रिस्क प्रीमियम। रिस्क में 3 तरह का रिस्क है, अभी मैं एक ही तरह का बोल रहा था, लिक्विडिटी रिस्क, मैच्योरिटी रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क, मैच्योरिटी रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मैच्योरिटी रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क। मेरे पास 2 चॉइस है, आई कैन ईदर इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, व्हाट, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी फ्लैट, और आई कैन इन्वेस्ट इन अ स्टॉक। चॉइस है, इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, इन्वेस्ट इन स्टॉक। द स्टॉक इज ट्रेडेड ऑल द टाइम ऑन द NSE BSE, स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं, जब चाहे बाई, जब चाहे सेल, बाई सेल बाई सेल, 50 बार 500 बार तुमको वही करना, सुबह से रात तक कर सकते हैं। रियल एस्टेट बाई कर लिए तो बेचने में प्रॉब्लम होगा, फ्लैट बाई कर लिए तो सल्टा नहीं पाओगे, टाइम लगेगा, स्टॉक बाई किए तुरंत सल्टा पाओगे। कौन सा बेटर लग रहा है बाई वाइज? स्टॉक। इसका मतलब यू लव लिक्विडिटी, एनीथिंग दैट यू बाय यू आर कंफर्टेबल इफ यू नो दैट यू कैन सेल इट व्हेनेवर यू वांट, बट एनीथिंग दैट यू बाय एंड यू नो यू कांट सेल इट, विल टेक टाइम, यू आर नॉट कंफर्टेबल. And if you're not comfortable, you should be satisfied with the same return on real estate or higher return. Higher return. I will not buy real estate unless it provides a higher return. That extra return is liquidity premium. What? Liquidity premium is the compensation required for the presence of liquidity or for the absence of liquidity. Absence of liquidity नहीं है तो क्यों buy करूँ? मेरे को extra return चाहिए.
Liquidity premium. This word liquidity, liquidity, liquidity will come everywhere. Filled up everywhere, liquidity. Best example to remember it is real estate. Art objects, paintings. ठीक है, एक ब्यूटीफुल पेंटिंग खरीद ली है, ठीक है, ऑफ $10 million. सब बोला उसका दाम बढ़ेगा, चिंता मत कर, अभी ये टेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है. एंड उसके बाद जाके यू वांट टू सेल इट आफ्टर 1 month, ठीक है. यू नेवर नो, यू हैव टू सेल इट टू द कबाड़ी. दिस नो बायर सपोज. मतलब बहुत प्रॉब्लम है पेंटिंग्स, रियल एस्टेट, ये सब बाई करने में. तो पीपल हु बाय द सेम, इफ दे आर बाइंग फॉर साइकोलॉजिकल रीजन, सेटिस्फैक्शन मिलता है रोज सुबह देख के, वो अलग बात है. अपने फाइनेंशियल फीलिंग्स का बात कर रहे हैं. We are talking finance. I have bought the painting because I believe in the long term the taste will develop and I will be able to sell it for 100 million. ठीक है, that type of return. तब जाके buy करेंगे. ठीक है. तो liquidity is a great point. सबसे ज़्यादा liquid दुनिया में है treasury securities. क्या? Treasury is most liquid. इतना ज़्यादा buy sell market है ना, 1 second में you can sell it off. ठीक है. तो उसके अलावा जो डेरिवेटिव्स है, अपने ठीक से किए नहीं करेंगे अभी, डेरिवेटिव्स, ओके, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो स्टॉक मार्केट में होता है, दे आर ऑल्सो वेरी लिक्विड. ठीक है, उनमें भी काफ़ी लिक्विडिटी है. यू कैन सेल इट ऑफ बाय एट वेरी हाई स्पीड. और एक चीज़ है, लिक्विडिटी इज अ फंक्शन ऑफ योर पोजिशन साइज एज कंपेयर टू द डेप्थ इन द मार्केट. तो मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ किया. योर पोजिशन साइज कंपेयर टू द डेप्थ इन द मार्केट. एवरी डे एक शेयर का 50,000 शेयर ट्रेड होता है, मोरलेस 50,000 शेयर बाई सेल होता है एवरी डे, 50,000 और इन एवरेज. मेरे को केवल 5 शेयर आज बेचने का मन है. कितना? 5 शेयर. 5 एज कंपेयर टू 50,000, स्मॉल क्वांटिटी, इजीली निकल जाएगा. मेरे को उस शेयर का 60,000 शेयर आज बेचने का मन है. एवरेज ट्रेडिंग ही 50,000 शेयर का होता है और मेरे को 60,000 या 1 लाख शेयर बेचने का मन है उसका. इसका मतलब पोजीशन साइज इज टू मच एज कंपेयर टू द डेप्थ ऑफ द मार्केट. बहुत प्रॉब्लम होगा. आई विल नॉट बी एबल टू सेल. ठीक है. तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन ऑल दोज एस्पेक्ट्स कि आप जो बेचना चाह रहे हो वो कितना बड़ा है एज कंपेयर टू जो एवरेज वॉल्यूम है. ठीक है, कॉमन सेंस डिस्कशन. ट्रेजरी इज मोस्ट लिक्विड. ट्रेजरी इज मोस्ट लिक्विड. ठीक है. तो वुड यू अग्री विद द फैक्ट दैट if there is a bond which will pay 1,000 after 10 years, 1,000 after 10 years, the price of the bond is 1,000 divided by 1 plus r power 10. There is a zero coupon bond, no coupon. 1 साल बाद कुछ नहीं देगा, 2 साल बाद कुछ नहीं, 3 साल बाद कुछ नहीं. आज बाई कीजिए, आपको 1,000 रुपये मिलेगा 10 साल बाद. So the price is 1,000 by 1 plus r power 10. There is another bond which will pay 1,000 after 2 years. 1,000 by 1 plus r the whole square. Correct? When R changes, R, look at the R. If R changes, बाजार में yield change हो गया, ठीक है? The price will change. There's only one variable on the right hand side. What is the only variable on the right hand side? R. R ही तो है, unknown. तो R change हो रहा है. तो what is changing? Price. R के change होने से price change हो रहा है. We call it interest rate risk. What risk? Interest rate risk. R change हो गया. कौन से बॉन्ड का दाम ज़्यादा चेंज होगा? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाले बॉन्ड का प्राइस है 1,000 बाय 1 प्लस आर पावर 10. सेकंड वाले का 1,000 बाय 1 प्लस आर पावर स्क्वायर. आर चेंज हुआ बराबर अमाउंट से बाय 0.2%. आर वॉज 10%, इट बिकेम 10.2. तो प्राइस विल फॉल. आर वॉज 10%, प्राइस कुछ आएगा. इफ आर इज 10.2, प्राइस विल फॉल. समझ में आ रहा है? Because you are pulling by 10.2%, नीचे में 10.2% से पुल कर रहे हैं. Price will fall. Which price will fall more? A. Why? Math बोलो. Power 10. Power 10. वो जो अंदर में disturb हो रहा है वो raised to the power 10. नीचे वाले में disturb to the power what? Square. तो which bonds are more volatile? Long term or short term? अभी तो बोला which bonds are more volatile? Bond A or bond B? Bond A. So which bonds are more volatile? Long-term bond or short-term bond? Long-term. 10-year bond is more volatile than 2-year bond. Is it okay? We are supposed to love volatility or hate volatility? Hate volatility. 10-year bond, I hate it. 2-year bond, I like it because I know if the rate changes, 10-year bond will move more. 2-year bond will move less. I want extra return from 10-year bond. Otherwise, I will not buy a 10-year bond. I am a risk-averse person.
10-year bond is more volatile. That extra return you require from long-term bond as compared to short-term bond is called maturity risk premium. क्या? Maturity risk premium. Maturity risk premium. क्यों long-term bond buy करें? बाई चांस रेट चेंज हो गया तो ज़्यादा भागेगा, ठीक है? तो आई वांट अ हाई रिटर्न, अदरवाइज नहीं बाई करूँगा, ठीक है? मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम, ठीक है? और डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम तो समझ ही गया, कोई भी चीज़ जिस पर डिफॉल्ट का स्कोप है. अ ट्रिपल ए रेटेड कंपनी, ट्रिपल ए रेटेड, फीलिंग्स आ रहा होगा, ट्रिपल सी रेटेड कंपनी, ट्रिपल सी रेटेड, विच कंपनी इज मोर लाइकली टू डिफॉल्ट? ट्रिपल सी, बिकॉज रेटेड बोल रहे थे, वर्ड पता चल रहा था, सर रेटिंग्स दिया हुआ है, हाई रेटिंग, मिडिल रेटिंग, लो रेटिंग, तो लो रेटेड मतलब बहुत ज़्यादा उस पर गड़बड़ है. तो nobody would like to buy a triple C rated bond now, but you still buy the bond provided you get what? Higher return. That extra return is what? Default risk premium. What premium? Default or credit risk premium. Credit risk premium. ठीक है? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स पता चला आपको, लिक्विडिटी, मैच्योरिटी, क्रेडिट रिस्क, ठीक है? तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, हैव अ लुक एट द बोर्ड. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रियल रेट. अब जब रिस्क का मतलब 3 है, तो दिस इज द रेट रिक्वायर्ड बाय यू फ्रॉम अ लिक्विड सिक्योरिटी और इलिक्विड. रिस्क फ्री लिखा है, रिस्क नहीं होना चाहिए, तो फ्रॉम अ लिक्विड सिक्योरिटी और इलिक्विड. लिक्विड बिकॉज अगर लेस लिक्विड है उस पर तो लिक्विडिटी रिस्क है ना. रिस्क माने केवल डिफॉल्ट नहीं हुआ, तीनों रिस्क है. यू वांट दिस रिटर्न फ्रॉम अ लिक्विड सिक्योरिटी और इन इलिक्विड. लिक्विड, देन आई वोंट वांट लिक्विडिटी प्रीमियम. यू वांट दिस रिटर्न फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी और अ लॉन्ग टर्म. Short term, because then there is no maturity risk. You want this return from a treasury security or non-treasury? Treasury, because there is no default risk. And plus you want this return in a situation where you are going to suffer inflation or you are not going to suffer inflation. Not going to suffer inflation. देखो 4 पॉइंट बोले. अगर हम पैसा कहीं लगा रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जहाँ पे एम्पल लिक्विडिटी है और जहाँ पे डिफॉल्ट का स्कोप नहीं है, मेरे को चाहिए RF रियल, और सॉरी जहाँ पे इन्फ्लेशन का डर नहीं है. बट अगर इन्फ्लेशन का डर है तो मेरे को इन्फ्लेशन प्रीमियम और चाहिए. मैं प्लस लिखा हूँ अप्रॉक्स से. अगर मेरे को दिख रहा है कि ये लेस लिक्विड है, लेस लिक्विड, एग्जाम्पल सुनो. देर इज अ म्यूनिसिपल बॉन्ड, देर इज अ म्यूनिसिपल बॉन्ड से इशूड बाय KMC, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, विच इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मोदी गारंटी की है, पैसा नहीं डूबेगा. गारंटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट इज शॉर्ट टर्म, इट इज शॉर्ट टर्म. स्टिल इट हैज सम रिस्क. व्हाट इज दैट रिस्क? नहीं, इन्फ्लेशन को नहीं माने, सपोज इट इज इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड. इट इज इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड. KMC का बॉन्ड है, मोदी गारंटी किया है पैसा देगा, शॉर्ट टर्म बॉन्ड है, ठीक है? तो उसमें कौन सा रिस्क बच गया? लिक्विडिटी. KMC का बॉन्ड कौन बाई सेल कर रहा है? उसका बाइंग सेलिंग नहीं है ना. बाई करोगे तो तुरंत निकल नहीं पाओगे, लिक्विडिटी रिस्क है. ओके, ट्रेजरी में लिक्विडिटी रिस्क नहीं है, बाकी सब में लिक्विडिटी रिस्क है, ठीक है? और अगर ये लॉन्ग टर्म है तो मैच्योरिटी रिस्क भी है, और अगर मोदी गारंटी नहीं की है तो डिफॉल्ट रिस्क भी है, ठीक है ना? तो वह क्या क्या ऐड करना है, वो एक इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है कि सर लिक्विडिटी रिस्क के बदले एक्स्ट्रा मांगेगा, सर मैच्योरिटी रिस्क के बदले एक्स्ट्रा मांगेगा. अरे तब मांग जब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं. लिक्विडिटी रिस्क के लिए तब मांग जब नॉन ट्रेजरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और डिफॉल्ट रिस्क के लिए तब मांग जब डिफॉल्ट हो सकता है. तो वैसे आर्ग्यूमेंटेटिव है, ठीक है? तो दीज आर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. ये तो हर जगह काम आता है, जो कुछ भी कर लो. और जो प्लस माइनस का बोल दिया, हो सकता है आप प्लस नहीं करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे फैक्टर. हो सकता है आप प्लस नहीं करोगे, आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई फैक्टर, फैक्टर इनटू फैक्टर -1, ठीक है? तो वेरी कंसेप्चुअल डिस्कशन दिस वन. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या क्या क्या हेडिंग चल रहा था? रिटर्न मेजर्स, ठीक है? ओके, लिखो पॉइंट नंबर 1. चार्ट ड्रॉ कर रहे. चार्ट है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ब्रैकेट RE. तीन पार्ट. वन इज रिस्क फ्री रियल रेट. The other is inflation premium.
द थर्ड इज रिस्क प्रीमियम. और रिस्क प्रीमियम के अंदर देयर आर 3 ब्रेकअप्स. लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम, लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम, मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम, डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम. लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम, मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम, डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम. तो कितने कंपोनेंट्स हो गए? 1 2 3 4 एंड 5. 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दिए, जिससे आई while I'm writing once again about them, I don't have to rename them again and again. Okay, 1 2 3 4 5. ठीक है, तो लिख दो इसमें फर्स्ट बुलेट. We are investing in a short term. We are investing in a short term treasury inflation protected security. शॉर्ट टर्म ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी. मैंने सारा चीज कैप्चर कर ली है. शॉर्ट टर्म ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी. ठीक है, थोड़ा सा नोट्स हैफेजर्ड होगा बट चलेगा, बिकॉज द पर्पज इज टू अंडरस्टैंड, नॉट टू डेवलप गुड नोट्स. जो शॉर्ट टर्म है उसको अंडरलाइन, शॉर्ट टर्म को अंडरलाइन और वहां से एरो टर्न किया. इसे थोड़ा हैफेजर्ड होगा बट इट विल हेल्प. ठीक है ना, शॉर्ट टर्म. इससे क्या पता चला, क्या चीज नहीं लेना है? जो सारे 1 2 3 4 5 में से कौन सा नहीं आएगा? 4. 4 विल नॉट बी चार्ज्ड. 4 विल नॉट कम. सही है, नंबर 4 विल नॉट कम. शॉर्ट टर्म फिर क्या वर्ड था? ट्रेजरी. ट्रेजरी था क्या वर्ड? तो ट्रेजरी को लाए. व्हाट विल नॉट कम? 2 चीज पता चला इसे, 2 चीज विल नॉट कम. क्या एंड क्या? एक तो लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम नहीं चाहिए और दूसरा क्या? डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम. तो लिक्विडिटी कौन सा पॉइंट था? 3 एंड 5 विल नॉट कम. 3 and 5 will not come. Will not come. क्या था? शॉर्ट टर्म ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड. अंडरलाइन, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड. What will not come? 2 will not come. 2 will not come. तो सब तो चला गया. 2 3 4 तो बचा क्या? 1. Therefore RE is equal to number 1. मैंने जैसे बोला थोड़ा हैफेजर्ड नोट्स हो रहा है बट डजंट मैटर. इट्स अ पॉइंट इज दैट अपने माइंड को स्ट्राइक कर रहा है क्या? RE इक्वल टू नंबर 1. ठीक है, नेक्स्ट बुलेट. फर्स्ट बुलेट का लैंग्वेज क्या था? वी आर इन्वेस्टिंग. तो लिख दो सेकेंड बुलेट. वी आर इन्वेस्टिंग इन अ शॉर्ट टर्म. वी आर इन्वेस्टिंग इन अ शॉर्ट टर्म ट्रेजरी सिक्योरिटी. शॉर्ट टर्म ट्रेजरी सिक्योरिटी. बस ध्यान रखो, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन एक स्पेशलिटी है. अगर वो है तो सब में दिया रहेगा. अगर चुप है इसका मतलब इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन नहीं है. नोबडी विल शाउट एंड से रिमेंबर देयर इज नो इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन. वो नहीं बोलने वाला है. ट्रेजरी सिक्योरिटी मतलब इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन नहीं है, नहीं बोला ना. यू कांट कंप्लेन दैट सर लिखा हुआ नहीं था. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया. इसमें ऊपर के मुकाबले क्या आने वाला है? 1 एंड व्हाट? 1 and 2. ठीक है, तो लिख दो RE इक्वल टू. तो फर्स्ट वाले को डिक कर लिए, इसलिए अब बाकी को उस तरह डिक करने का जरूरत नहीं. RE इक्वल टू 1 + 2. थर्ड बुलेट, वी आर इन्वेस्टिंग. थर्ड बुलेट, वी आर इन्वेस्टिंग इन अ शॉर्ट टर्म म्यूनिसिपल सिक्योरिटी विथ गवर्नमेंट गारंटी. शॉर्ट टर्म म्यूनिसिपल सिक्योरिटी विथ गवर्नमेंट गारंटी. शॉर्ट टर्म म्यूनिसिपल सिक्योरिटी विथ गवर्नमेंट गारंटी. तो इन्वेस्ट कर रहे तो 1 तो आएगा ही, और इन्फ्लेशन का प्रोटेक्शन नहीं है तो 2 तो आएगा ही,
और सर म्यूनिसिपल है माने लिक्विड नहीं है, म्यूनिसिपल मतलब लिक्विड नहीं है, तो कौन सा था लिक्विड वाला? 3 भी आएगा ही, बट सर शॉर्ट टर्म है तो 4 नहीं आएगा, और सर गवर्नमेंट गारंटी है तो 5 नहीं आएगा। सही है। थर्ड बुलेट, आर ई इक्वल टू 1 + 2 + what? 3. You have to understand, treasury is the most liquid. Apart from treasury, everything is less liquid. Number 4th bullet, we are investing in a long-term municipal security with government guarantee. We are investing in a long-term municipal security with government guarantee. Long-term municipal security with government guarantee. लॉन्ग टर्म आते ही क्या आएगा? मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम, बिकॉज लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आर मोर वॉलेटाइल, और बाकी सब तो है ही। आर ई इक्वल टू 1 बिकॉज पैसा लगा रहे हैं, 2 ये जो बोल पा रहे हैं ना बार बार, 1 बिकॉज पैसा लगा रहे हैं, 2 बिकॉज इन्फ्लेशन का प्रोटेक्शन नहीं है, 3 बिकॉज सर म्यूनिसिपल है, लेस लिक्विड है, 4 बिकॉज सर लॉन्ग टर्म है। तुम बार बार अगर बोल पा रहे हैं, समझो लिखने में फ्रस्ट्रेशन है बार बार, मैं मान रहा हूँ, बट सोचने में तो फ्रस्ट्रेशन नहीं है। क्यों लिया 4? उसका जवाब आ रहा है कि 1 में, दैट्स इट। लास्ट वाला, वी आर इन्वेस्टिंग इन अ लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, या मैं लिखा सकता था लॉन्ग टर्म म्यूनिसिपल सिक्योरिटी विदाउट गवर्नमेंट गारंटी, तो भी चलता, तो मैं लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट सिक्योरिटी लिखा दे रहा हूँ। अरे क्रिटिकल, दोनों में डिफरेंस क्या होता सुनना तो एक बार। अगर मैं लिखा था लॉन्ग टर्म म्यूनिसिपल सिक्योरिटी विथ नो गवर्नमेंट गारंटी एंड लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, दोनों में पांचों का पांचों तो आएगा, पर पांचवा कंपोनेंट कॉर्पोरेट में ज्यादा होगा। इट इज नॉट अबाउट ये पांचवा है क्या, पांचवा कितना है, 1% ज्यादा कि 2% ज्यादा कि 4% ज्यादा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इफ आई डिक्टेट म्यूनिसिपल सिक्योरिटी विदाउट गवर्नमेंट गारंटी, उस पर भी पैसा डूब सकता है, बट कॉर्पोरेट सिक्योरिटी में पैसा डूब सकता है। कॉर्पोरेट में AAA में, CCC में, दोनों में ही पैसा डूब सकता है, पर CCC में तो और ज्यादा चांस है। तो वो जो क्वांटम है वही तो मैटर कर रहा है। सही है, ठीक है। तो वी आर इन्वेस्टिंग इन कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। तो आर ई इज इक्वल टू व्हाट? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, तो कम्युनिकेट हो जाएगा। बट रिमेंबर दैट रिस्क एंड एडवाइस विच आई टोल्ड यू, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हाउ फास्ट यू रिवाइज, द लैग। इफ यू रिवाइज इट टुडे टुमारो 100% याद रहेगा सारा चीज। यू रिवाइज इट लेटर, यू विल फील क्या एरो टान रहे थे, ऐसे कर रहे थे, समझ गया? तो आपको लैग के बिना रिवाइज करना है, कमती समय लगता है, पूरा समझ में आता है। ठीक, नेक्स्ट, ये अपना एक चार्ट चालू हुआ था ना, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हाँ ठीक है, इसमें कुछ बुलेट्स लिख ले। फर्स्ट बुलेट, रियल मीन्स, नहीं नोट लिख ले, नोट, बिकॉज बुलेट तो चल रही था। नोट, रियल मीन्स विदाउट इन्फ्लेशन, real means without inflation while nominal means with inflation. Real means without inflation while nominal means with inflation. फिर से नोट, liquidity refers to the ability to take or offload positions, take or offload positions with speed, fatafat, with speed and without substantial change in value, and without substantial change in value. ठीक है, तो नंबर 1 मैं फटाफट बेच पाऊँ, नंबर 2 मैंने जब देखा, डिसाइड किया बेचने का, और जब बेचने गया उस पर दाम चेंज नहीं हो जाए बहुत ज़्यादा। देयर शुड बी ए कंटिन्यूटी इन प्राइस, आई शुड बी एबल टू सेल एट फेयर वैल्यू, नॉट डिस्ट्रेस। ठीक है, तो लिक्विडिटी का मतलब ये है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है
कि जो रियल एस्टेट है वो सबसे कमती लिक्विड है, लिख देना ब्रैकेट में, रियल एस्टेट इज लीस्ट लिक्विड, रियल एस्टेट इज लीस्ट लिक्विड, एंड treasury is most liquid. Real estate is least liquid and treasury is most liquid. Treasury is most liquid. Treasury is most liquid. फिर से note. Look at the price equation. लिखना. Look at the price equation. Please write down. Look at the price equation. Look at the price equation of a 2-year and 20-year zero coupon bond. Look at the price equation of a 2-year and 20-year zero coupon bond. Look at the price equation of a 2-year and 20-year zero coupon bond. 2-year and 20-year zero coupon bond. Dash, next line. P0 equal to 1000 divided by 1 plus R to the power 2 versus P0 equal to 1000 divided by 1 plus R to the power 20. वैसे याद है क्या आज जो किए थे कि अगर ये प्राइस है, प्राइस पर IV0 नहीं है, P0 है, P0 एक्चुअल प्राइस इक्वल टू आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो करके जो R निकलता है उसको बॉन्ड में क्या बोलते हैं? YTM. क्या बोलते हैं? YTM. यही अगर R निकाल रहा है इसको बॉन्ड में क्या बोलते हैं? YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी. कैपिटल बजट में क्या बोलते हैं? IRR. और स्टॉक में क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रिटर्न. तीनों का फील्ड सेम है बट दे आर डिफरेंट नेम्स. ठीक है, तो लिख दो. Thus if yield bracket R, thus if yield bracket R changes, thus if yield bracket R changes every moment, changes every moment, comma, price changes in the opposite direction, price changes in the opposite direction. Stop and think. Opposite direction समझ में आ रहा है क्या? एक बार stop and think please. Price changes in the opposite direction. Opposite direction समझ में आ रहा है क्या? सब जन अपने आप को satisfy कर लो. सर R अभी 8% है, तो this is 1000 divided by 1.08 square. R 9% हो गया, तो 1000 तो 1000 ही, but divide by क्या? 1.09 square. नीचे बढ़ गया तो प्राइस क्या आएगा? कम. रेट बढ़ने से प्राइस कम आएगा. इन द ऑपोजिट डायरेक्शन शुड बी ओके विथ यू. ठीक है, फुल स्टॉप. However, since the factor that is 1 plus R, since the factor that is 1 plus R is raised to the power 20, since the factor that is 1 plus R is raised to the power 20, raised to the power 20, the factor that is 1 plus R is raised to the power 20 in the second bond, raised to the power 20 in the second bond, comma, the long-term bond will be more volatile. Long-term bond will be more volatile. Long-term bond will be more volatile. Dash. This is called maturity risk. Long-term bond will be more volatile. Dash. This is called maturity risk. This is called maturity risk. Full stop. So whenever we buy a long-term bond, so whenever we buy a long-term bond, so whenever we buy a long-term bond, comma, we demand a higher return. So whenever we buy a long-term bond, we demand a higher return. We demand a higher return. Last note. फिर से नोट. If real rate equal to 5% and inflation premium equal to 3%, what's the nominal rate? What's the nominal rate? तो इसका एक आंसर है कि दो. ठीक है, दो आंसर दिखा रहे हैं.
One is nominal rate equal to 5 plus 3, 8%. Bracket क्या लिखो, approx या accurate? Approx. 8% approx. Because we have missed out 3% of 5. और right side में nominal rate equal to 1.05 into 1.03 minus 1 is equal to 8.15%. 8.15%. वो 3% of 5 is 0.15 ना. और आई होप ये समझ में आ रहा हो, ये फॉर्मूला नहीं है, ये है 1 रुपी के बदले आपको क्या चाहिए 1.05 और 1.05 पे 3% मोर, तो इंटू 1.03 और पूरे में से 1 हटा दिए 8.15. ये कोई फॉर्मूला नहीं है. ओके, दिस इज स्पोकन आउट लॉजिक. नेक्स्ट लाइन एग्जाम्पल, फिर से एग्जाम्पल. नॉमिनल रेट 10%, inflation premium 4%. What is the real rate? Nominal rate 10%, inflation premium 4%. What is the real rate? फिर से दो आंसर. सबसे इंट्यूटिव आंसर है 6. सो रियल रेट इक्वल टू 10 माइनस 4, 6% अप्रॉक्स. 6% अप्रॉक्स. राइट साइड में रियल रेट इक्वल टू 1.1 डिवाइड बाय 1.04 माइनस 1. 1.1 डिवाइड बाय 1.04 माइनस 1 क्या? 5.76%. 5.76%. 0.0576 मतलब 5.76%. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, रिटर्न मेजर्स में पॉइंट नंबर 2. लिखो, यू बाय अ स्टॉक at 800. You buy a stock at 800, comma, sell it after 2 months at 818 and receive a dividend of 2. स्टोरी खत्म. 800 का शेयर खरीदा, 818 पे बेचा एंड 2 रुपया डिविडेंड मिला. सबको फील हो गया होगा 20 कमाए. 800 का शेयर खरीदा, 818 पे बेचा, 18 रुपया प्लस 2 रुपया डिविडेंड, 20 रुपया कमाया. ठीक है. इसके बेसिस पे लिखना, कैलकुलेट वेरियस टाइप्स ऑफ यील्ड. कैलकुलेट वेरियस टाइप्स ऑफ यील्ड. तो ये जो द वर्ल्ड ना इज एडिक्टेड टूवर्ड्स परसेंटेज. सबको परसेंटेज 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 चाहिए, तो इसलिए अब इसका परसेंटेज बोलना है. तो लेट्स डिस्कस वर्बली पहले, जिससे 2 बार डिस्कस करने का मौका मिले. 20 रुपया कमाए, ये सबको समझ में आ गया है ना. डिविडेंड 2 रुपया और प्राइस चेंज 18 रुपया. 20 रुपया कमाए 800 लगा के, कितना 800 लगा के. सो द रिटर्न इज 20 बाई 800 इंटू 100. 20 बाय 800 इंटू 100. ये जो 20 बाई 800 इंटू 100 है, दैट्स कॉल्ड होल्डिंग पीरियड यील्ड. क्या? होल्डिंग पीरियड यील्ड, HPY. बिकॉज दिस द यील्ड फॉर अ ईयर और यील्ड फॉर 2 months. 2 months, 2 महीने का यील्ड, होल्डिंग पीरियड यील्ड. ठीक है. तो दिस द यील्ड फॉर 2 months, होल्डिंग पीरियड यील्ड. एक लिखना सॉल्यूशन.
solution. Holding period yield. Holding period yield. Bracket HPY equal to D1 plus P1 minus P0 divide by P0 into 100. Now, although this is not a formula by any stretch of imagination, but it is so frequently written everywhere ना, that मैंने लिख दिया, because हम लोग तो निकाले लिए थे, सर डिविडेंड 2 रुपया, प्राइस का चेंज 18, उसमें क्या चाहिए P1 P0, 20 रुपया डिवाइड बाय 800 into 100. So I just wrote it because it's written so many places. So is equal to dividend is how much? 2. You sold it at 818. You bought at what? 800. Divide by what? 800 into 100. So 20 by 800 into 100 is what? 2.5% है ना? 2.5% is the return. Return per annum या return for 2 months? For 2 months. Like the for 2 months. Now be natural in your reply. Natural. 2.5% 2 month है. अब इसको एनुअलाइज करना है. क्या करना है? एनुअलाइज. इसको साल का करना है. ओके, ईयर का. तो साल का करने के लिए या तो 2.5% 2 महीने का, तो साल का 2.5 into 6. 2 महीना साल में कितने बार आता है? 6 बार. तो सबसे नेचुरल 2.5%. 2 महीने का तो साल का into 6. Into 6 is how much? 15%. ये जो 15% आपने बोला, इस 15% पे ब्याज जो होता है, 2 महीने का 2.5%, फिर वापस से 2.5% उसके ऊपर ले लिए कि नहीं लिए? नहीं लिए. तो इसलिए द वर्ल्ड स्पीक्स इट आउट एज मनी मार्केट यील्ड. व्हाट यील्ड? मनी मार्केट यील्ड में लोगों का यही तरीका है, वो लोग इनटू करते हैं और इसको बोलते हैं 15% पर एनम कंपाउंडेड एवरी 2 months. 15% पर एनम कंपाउंडेड एवरी 2 months. ये जो लास्ट में बोला कंपाउंडेड एवरी 2 months, बोलने का मतलब क्या है? मैंने कंपाउंड कर लिया, या मैं जो सुन रहा उसको बोलना चाह रहा हूँ, रुक जा, ध्यान रखना, कंपाउंड करना है. किया नहीं, केवल स्टेट किया है. मैंने कंपाउंड कहाँ किया? 2.5% पे वापस 2.5% ब्याज तो लिया ही नहीं. तो अपने लिसनर को बोल रहे, रिमेंबर दिस इज कंपाउंडेड एवरी 2 months. यानी ये इफेक्टिव नहीं है. अगर ब्याज पे ब्याज लगाओगे तो 15 आएगी, उससे ज़्यादा. तो इट इज स्टेटेड. वो जो बोलते हैं कंपाउंडेड एवरी 2 months, इसका मतलब कंपाउंडेड किया हुआ नहीं है, स्टेट कर रहा है. क्या कर रहा है? स्टेट. वरना स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर आपने तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाया नहीं, फिर आप क्यों बोल रहे हैं कंपाउंडेड एवरी 2 months? When we say compounded every 2 months, it is a stated rate. What rate? Stated. ठीक है तो? If we apply the compound interest and make it that, that's called effective rate. What rate? Effective. So when you do into 2 महीने का इतना साल का into 6, 3 महीने का इतना साल का into 4, 6 महीने का इतना साल का into 2, that's called money market yield. What yield? Money market yield or stated rate. Money market yield or stated rate. लिख देना. क्या चल रहा था? नंबर 1 चल रहा था क्या? नहीं, स्ट्रेट अवे सॉल्यूशन चल रहा है. सेकंड वाला यील्ड, मनी मार्केट यील्ड. मनी मार्केट यील्ड ब्रैकेट MMY इक्वल टू HPY इंटू 12/n. HPY इंटू 12/n. HPY इंटू 12/n यानी इक्वल टू 2.5 into 12/2. 2.5 into 12/2. Although it would be so foolishness for somebody to do 12/2. You are able to do 6 times and you are writing 12 divided by 2. समझ गया? बड़ी का फॉर्मूला लिखाने के लिए I had to. So 2.5 into 12/2 equal to what? 15% per annum. Write down 15% per annum compounded every 2 months. 15% per annum compounded every 2 months. Compounded every 2 months जहाँ लिखा है उसको अंडरलाइन करके, compounded every 2 months को अंडरलाइन करके डैश. It is just stated. It is just stated. कंपाउंडिंग किए नहीं है. सुनने वाले को बोलना चाह रहे, ध्यान रखना भाई, कंपाउंडिंग होगा. ओके, इट इज जस्ट स्टेटेड. कंपाउंडेड एवरी 2 months. वहीं पे एक नोट देना है,
और सुन लो प्लीज, अगर डेटा डेज में होता, डेज कि 60 डेज का रिटर्न इतना, 60 डेज का रिटर्न इतना, तो MMY 360 डेज यूज करता है, 365 यूज नहीं करता है। ये तो मंथ्स में था तो बच गए, दिखा नहीं, वरना MMY अगर डेज इट यूजेस 360 डेज इन अ ईयर। मतलब होता है ना, कुछ कुछ लोगों को गंदगी पसंद नहीं है, ब्यूटिफिकेशन पसंद है, MMY वही है। कौन पावर करेगा, चल यार इनटू, कौन 365 करेगा, समझा मैंने, मैं टोन बोल रहा इसलिए, तो MMY इज लाइक ब्यूटिफिकेशन 2.5 इंटू 6, ठीक है। तो और वो भी अगर डेज होता तो इंटू 360 बाई वॉट 60, ठीक है। तो तुम्हारे 365 डेज भूल के यूज नहीं कर ले MMY में, लिख देना नोट, इफ द होल्डिंग पीरियड इज इन डेज, इफ द होल्डिंग पीरियड इज इन डेज, इफ द होल्डिंग पीरियड इज इन डेज, is in days, comma, MMY uses 360 days in a year. MMY uses 360 days in a year. 360 days in a year. तो MMY को देख के आपको क्या फीलिंग आता है, सिंप्लिसिटी का कि एक्यूरेसी का? सिंप्लिसिटी का, ठीक है। अब सुनना, अगर 2.5% 2 मंथ में कोई अर्न कर रहा है तो 1 रुपी आफ्टर 2 मंथ इज बिकमिंग हाउ मच? 1.025 फैक्टर, 1.025, तो आफ्टर 4 मंथ्स 1.025 स्क्वायर, आफ्टर 6 मंथ 1.025 क्यूब, आफ्टर 12 मंथ्स 1.025 पावर 6। वो 6 जो कर रहे थे, इफेक्ट तो आना ही है फैक्टर के पावर में, लास्ट क्लास भी ये कर रहा था। 1.025 पावर 6 और इसमें से -1 करेंगे तो ये जो आंसर आएगा ये तो साल का इफेक्टिव, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आ गया ना, साल का इफेक्टिव, ठीक है ना। दैट्स कॉल्ड इफेक्टिव एनुअल यील्ड। क्या? इफेक्टिव एनुअल यील्ड, लिख देना इफेक्टिव एनुअल यील्ड, इफेक्टिव एनुअल यील्ड ब्रैकेट EAY, जानबूझ के फॉर्मूला लिख रहे हैं 1 + HPY, यानी क्या हो गया, फैक्टर टू द पावर व्हाट 12/n - 1, 1 + HPY टू द पावर 12/n - 1। एक मिनट, बेटर होगा यही मेंशन कर दिया, 12 था ना, जैसे ये फॉर्मूला में जो MMY में 12 के बदले /365 ऑब्लिक, सॉरी क्या था वहाँ 360, 12 के बदले 360 और यहाँ पे 12 के बदले 365। अंडरस्टैंडिंग? EAY तो इफेक्टिव है और इफेक्टिव कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर डेज में डेटा होता तो पावर में चढ़ाते 365/60, तो वो तो मंथ्स में डेटा था तो वी डिडंट गो इनटू इट। डेज में होता तो इफेक्टिव माने इफेक्टिव ना, एक्यूरेसी का माउंटेन, ठीक है। तो यहाँ पे तो खैर 1.025 to the power 12/2 - 1, 1.025 to the power 6 - 1, of course into 100 please, 1.025 to the power 6, can you do it on the calci? 1.025 फिर y पावर x का बटन 1.025, पहले तो डेसिमल प्लेस को बढ़ा दो, पहले तो डेसिमल को बढ़ा दो, डेसिमल को बढ़ा दो, समझ पा रहे हो? मेरे डेसिमल 2 है, मैं बढ़ा रहा हूं। सेकेंड फॉर्मेट 4 एंटर CEC, मैंने किया सेकेंड फॉर्मेट 4 एंटर CEC, सेकेंड फॉर्मेट 4 एंटर CEC, तो मेरे 0.0000 आ गया। अब 1.025 और y पावर x का बटन ये रहा, पावर क्या चाहिए 6 इक्वल टू ये जो आया -1 इक्वल टू इंटू 100, 15.9693%। अब डिपेंड करता है ऑप्शंस कैसे में दिया है, जनरली ऑप्शन इस सब में 2 में रहेगा तो 15.97%, बट 2 डेसिमल में लाने के लिए आपको 4 डेसिमल लगाना पड़ा, क्योंकि जब 0 में लिख रहे हैं नॉट इंटू 100 करे बिना, तब तो वो 4 में आ रहा है ना, तब तो जाके 2 में आ रहे हैं। 15.97%, तो दिस इज 15.97%। 15.97% के बाद क्या लिखूं?
जैसे वहां लिखा था पर एनम कंपाउंडेड एवरी 2 मंथ्स, यहां पे क्या लिखे? पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो सुनने वाले को बोल रहे हैं भाई इसमें कोई ब्याज पे ब्याज लगाना नहीं है, ये सब लगा के बोल रहे हैं 15.97% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। तो सुनने वाला समझ गया यार ये तो इफेक्टिव है, ये कंपाउंडेड एनुअली बोल रहे हैं। एक आखिरी वो क्या है कि जो बॉन्ड्स है ना, बॉन्ड्स दे पे कूपन एवरी 6 मंथ। मोस्ट बॉन्ड्स पे एवरी कूपन एवरी 6 मंथ, 6 मंथ में कूपन, 6 मंथ में, 6 मंथ में, 6 मंथ में। तो बॉन्ड मार्केट में हैबिट है कि वो लोग 6 मंथ का रिटर्न निकाल के इंटू 2 करते हैं। किसका निकाल के? 6 मंथ का रिटर्न निकाल के इंटू 2 करते हैं। तो अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया और आप अपना परफॉर्मेंस बॉन्ड मार्केट से कंपेयर करना चाह रहे हो, या इन्वेस्टेड इन द स्टॉक, अब मन में आ रहा है या स्टॉक में इन्वेस्ट किए इससे बढ़िया बॉन्ड में लगाते बेटर रहता शायद, तो चल रिटर्न कंपेयर करते हैं। तो स्टॉक का रिटर्न को बॉन्ड से कंपेयर करें, बट बॉन्ड मार्केट में तो रिटर्न है 6 मंथ का इंटू 2, 6 मंथ का इंटू 2। EAY इज नॉट कंपेरेबल बिकॉज ये तो 6 मंथ का इंटू 2 है नहीं, तो साल का इफेक्टिव है। MMY इज नॉट कंपेरेबल बिकॉज ये तो 2 महीने का इंटू 6 था, दोनों कंपेरेबल नहीं है। तो कंपाउंडेड एवरी 2 मंथ्स है। मेरे को चाहिए कंपाउंडेड व्हाट? सेमी एनुअली। कंपाउंडेड व्हाट? सेमी एनुअली। तो अपने क्या करेंगे, ये जो इफेक्टिव आया, इफेक्टिव सुना प्लीज, इफेक्टिव, इसका फैक्टर बोलना 1597, सही है? 1 मिनट, इफेक्टिव का फैक्टर ये है 1 रुपी आफ्टर 1 ईयर बिकम्स इतना, आफ्टर 6 मंथ बिकम्स इतना, 1 रुपी आफ्टर 1 ईयर बिकम्स 1.1597, तो आफ्टर 6 मंथ बिकम्स 1.597 टू द पावर हाफ माइनस 1। ये आ गया 6 मंथ का रेट, और द होल इंटू 2 इंटू व्हाट 100। व्हाट एवर डन, इफेक्टिव रेट साल का है तो 6 महीने में आने के लिए बाई 2 नहीं कर पाएंगे ना, यू हैव टू डू फैक्टर पावर हाफ। तो वो मैंने किया -1, 6 महीने का आ गया, फिर इंटू 2 इंटू 100। ये जो आया दिस इज व्हाट, 6 महीने का डबल, 6 महीने का। तो दिस इज पर एनम कंपाउंडेड व्हाट, सेमी एनुअली। इट इज कॉल्ड बाय अ स्पेशल नेम बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। क्या नाम है? पहले सुन लो, बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। नाम क्या है? बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्योंकि बॉन्ड मार्केट में लोग का हैबिट है 6 महीने का डबल ना, तो कोई भी चीज को जबरदस्ती 6 महीने भेज दिए और फिर वहां से डबल कर रहे हैं। ठीक है, 6 महीने में ले जाके डबल कर रहे हैं। इट इज अ बिट फ्रस्ट्रेटिव बट इट इज डन बिकॉज बॉन्ड मार्केट इज अ बिग मार्केट एंड वहां पे 6 महीने का डबल किया हुआ है। ठीक है, तो लिख देना प्लीज, बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड ब्रैकेट BEY, बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड ब्रैकेट BEY इक्वल टू 1 प्लस EAY to the power half minus 1। तो 1 प्लस EAY क्या, 1 रुपये का वैल्यू 1 साल बाद, टू द पावर हाफ 6 महीने बाद -1, अब द होल इंटू 2 इंटू 100। तो करे परसेंटेज के लिए 1 प्लस EAY 1 साल बाद फ्यूचर वैल्यू टू द पावर हाफ 6 महीने बाद -1, इंटरेस्ट आया इंटू 2 इंटू 100। तो दिस इज इक्वल टू 1.1597 to the power half -1 into 200. Let's do it on the calci. Calci में कर रहे हैं 1.1597। फिर शायद स्क्वायर रूट का बटन है ना कैल्सी में, ये रहा स्क्वायर रूट, I/Y के नीचे स्क्वायर रूट -1 इक्वल टू इंटू 200। आंसर इज व्हाट, 15.38%, 15.38%। ओके, इट्स 3787, तो 15.38%। 15.38% के आगे क्या लिखे? पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो सुनने वाला आदमी समझ गया कि यार ये तो इंटू 2 करके बोला है। कंपाउंडेड सेमी एनुअली मतलब इसको डिवाइड बाई 2 अलाउड है, कंपाउंडेड मंथली मतलब डिवाइड बाई 12 अलाउड है, कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब डिवाइड बाई 4 अलाउड है, कंपाउंडेड एनुअली मतलब डिवाइड बाई एनीथिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, 15.38% पर एनम कंपाउंडेड व्हाट, सेमी एनुअली।
सेमी एनुअली, ठीक है। इन पे कंप्लीट मास्टरी के लिए बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, ऐसे नहीं होता है। अ लॉट ऑफ सम्स हैव टू बी प्रैक्टिस्ड कि सम में एग्जाम में कैसे टेस्ट करता है कैसे नहीं। इट डजंट हैपन द वे आई एम डूइंग बिकॉज यू आर गेटिंग द स्टफ बट देन इट्स गेटिंग हेवियर एंड हेवियर बिकॉज ऑफ न्यू टर्मिनोलॉजी ना, BEY, HPY, EAY एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। तो और थोड़ा मेरे को लग रहा है एनर्जी लेवल मेरा और तुम्हारा दोनों कम हो गया है एज कम्पेयर टू व्हेन वी स्टार्टेड एट 11। तो लेट्स नॉट स्पॉइल द सेम, अभी अपने एंड करते हैं।